दिस इज द पेपर दैट आई हैव टू डील विद। ये मुझे करना है 3 घंटे में। मुझे क्या मिल गया है ये बोर्ड का पेपर है फिजिक्स का क्वेश्चन मार्क। हमारी तो फील्डिंग सेट है भाई। Hello everyone, good morning. It's been 24 hours officially since I gave my first board exam that was of physics obviously. So I know it's a bit repetitive that people all over YouTube are trying to say what they are feeling about their exam, how their exam went, but I'm no better, okay? I also want to talk about how my exam went. Obviously it might be a bit different because some people are talking about their exams inside Delhi and some people are like from outside Delhi and the sets are different and all that. So paper differs and experience also differs because one person to other obviously, like एक इंसान से दूसरे इंसान में एक्सपीरियंस डिफर करता है कैसा उनका पेपर गया obviously, and I am no better than anyone, which is why I am here and I am going to talk about how my exam went. So without a further ado, I know it sounds way too YouTuber-ish. We are going to continue talking about the physics exam. Let's start off by showing you the paper that I got. Let me get the paper. I'm sorry, I'm so underprepared. Let me go get my paper and then I'll show it to you. Wait. So here we go. This was my paper and I'll quickly take it out and show it to you guys. This was my question paper code. This was my code. I got the set 2. So I'll start off with telling you guys about my board experience, how my board exam went, what happened on the day of giving my board exam. So please ignore my hair, they are acting up. I need to wash them today even though it's a Saturday. Sorry mom if you are listening or watching this. I should not be washing my hair on Saturday, but I really need to. It's kind of oily. The night before my physics exam, I was planning that अब इतना ही है, अब I don't want to like put in more effort. This is it. I had planned that मैं सुबह उठूँगी at like 3 AM and sleep early and then मैं उठ के प्रिपरेशन करूँगी and then रिवाइज करूँगी जितना भी मैंने पढ़ा है, ताकि मतलब एक तरीके से वो होता है ना कि तुमने जो भी पढ़ा था सब रिवाइज कर लिया और जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, राइट? और तुम्हें लाइक एक तरीके से रियलिटी चेक मिल जाए कि हाँ तुमने सब पढ़ा था, वो प्रिपेयर किया है, वो दिमाग में होना चाहिए. आई एम हैप्पी आई डिड इट, बट मुझे लग रहा है कि मुझे वो और अच्छे से करना चाहिए था, बट विल गेट टू दैट लेटर. तो फिर मैं उठी एंड देन मेरा प्लान जो था वो पूरी तरीके से माई प्लान डिडंट वर्क. वॉट हैपेंड वॉज माई डैड अराइव्ड. My papa arrived last night before the exam. He was like, I'll drop you to the center and all. Typical Indian dad, obviously. So he didn't trust any of my friends. He was like, no, you're not going with your friends, you're going with me. I was like, okay. Yeah, I was planning to sleep by 11ish something, but guess what, my sisters called and the call with my sisters just never ends. We talked for almost 1 hour or so. I don't know what we have that is so long that we need to talk about. इतना क्या है बोलने के लिए, we don't know. इतना इन्फॉर्मेशन कहाँ से आता है, बट हम बहुत बात करते हैं. लाइक काफ़ी 12 बजे तक चली गए था. देन आई वॉज लाइक गाइज आई नीड टू लीव, आई नीड टू गो, बाय बाय. देन I went and then I was like, I opened my book. I was like, जब तक मेरे को नींद नहीं आ रही है, I could not sleep, you know, the stress of that मेरा पेपर कल फिजिक्स का. although ना the thing is कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में शायद अगर वो वीडियो मैं डालूंगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनफिल्टर्ड और बहुत ज़्यादा वियर्ड सी है, तो मतलब उसमें मैंने ऑफिशियली ये मतलब बात ही करी थी बिफोर माई एग्ज़ाम. सो वो वीडियो मैं वापस देखना भी नहीं चाहती क्योंकि उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें कह रही थी जो नहीं कर पाई मैं. ऑब्वियसली आई नो सिचुएशन एंड ऑल, बट जो भी है मतलब मैं उस वीडियो में लाइक यही कह रही थी कि आई एम मोर स्ट्रेस्ड अबाउट द फैक्ट दैट आई एम नॉट स्ट्रेसिंग एट ऑल अबाउट दिस एग्जाम्स, बिकॉज मैंने इस साल मतलब टॉकिंग अबाउट द ईयर like the session of my class 12 मैंने इतने पेपर दे दिए हैं फिजिक्स के and all of them have like gone down very badly obviously. so मुझे एक तरीके का वो नहीं है like कि मैं बहुत गंदा करूँगी and बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस हो जाएगा, बट वो स्ट्रेस नहीं आ रहा ना. that's what I was scared about. और मैं बता रही हूँ वो स्ट्रेस मुझे एक्चुअली कहीं नहीं आया until I got the paper in my hands and I was like, और उसके बाद भी पेपर आने के बाद भी you have to like do a little
फिक्सिंग एंड ऑल, वो जो चीज़ें लिखना होता है ना, यू हैव टू डू दैट। उसके बाद भी जब मैं एक्चुअली पेपर लाइक पढ़ना शुरू करी तब मुझे वो स्ट्रेस आया कि डैंग, दिस इज द पेपर दैट आई हैव टू डील विद, ये मुझे करना है 3 घंटे में। दैट वाज माई ब्रेकिंग पॉइंट। रात में क्या हुआ, आई वॉज लाइक मुझे नींद नहीं आ रही है अभी, क्योंकि मेरे को ये है कि मेरा इतना सब कुछ बचा है, तो मतलब आई वॉज नॉट रीचिंग दैट सेटिस्फैक्शन लेवल, विच इज़ वाई आई वॉज लाइक आई नीड टू स्टडी टिल मुझे जब तक नींद नहीं आती है। एंड देन गेस वॉट, मेरे साथ ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे को जब पढ़ना हो जेन्युइनली मैं बुक खोल के सो जाऊँ उसी के ऊपर, मेरे साथ कभी नहीं हुआ है ऐसा। एंड गेस वॉट, ये कब होता है, मेरे बोर्ड एग्ज़ाम से एक दिन पहले। 2 बजे रियलाइज़ हुआ मुझे ये चीज़ कि मैं अपने बुक्स के ऊपर ही सो गई थी। ऑब्वियसली बात है 12 बजे के बाद मैं सोई हूँ, 2 बजे मेरे को ये रियलाइजेशन हो रहा है और मुझे नींद आ रही है। तो मुझे ये तब पता चला जब मतलब मेरे स्लीप स्केड्यूल या मेरा जो भी मैंने प्लान बनाया था उसको ख़त्म होने में सिर्फ 1 घंटा बचा है। इमेजिन माई हॉरर, इमेजिन माई ग्रीफ कि लिटरली मेरे को इतनी नींद आ रही है, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है और मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है सोने के लिए। उसके बाद मेरे को जंग में लड़ने जाना है। आई हैव टू पार्टिसिपेट इन द बैटल ऑफ फिज़िक्स, जिसमें ऑब्वियसली मेरी जो अपोजिट पार्टी है जिसके साथ मैं लड़ रही हूँ फिज़िक्स, उसका पलड़ा भारी है। तो मतलब पहले आई विल गिव यू कॉन्टेक्स्ट कि मैंने जो किया मैंने वो क्यों किया। पहले थोड़ी सांत्वना मेरे लिए रखिए, थोड़ा सा सिंपैथी मेरे लिए रखिए। मेरी नींद बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे थी। मैं पिछले बहुत वीडियो से यही बोलती आ रही हूँ, जो पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे इन टू दिस वर्ल्ड, बट मैं ये बोलती जा रही हूँ। मैं पिछले 7-8 दिनों से बिफोर माई लास्ट डे फॉर प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड्स, उससे पहले 7 दिन लगातार आई वॉज स्लीपिंग एट 4 AM in the morning एंड देन वेकिंग अप एट 8। सो मेरा स्लीप शेड्यूल का बहुत बुरा हाल हो गया था और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, मैं बहुत ज़्यादा स्लीप डिप्राइव थी। तो मैंने आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया। अगर आपको मेरी थोड़ी सी सिंपैथी भी आ रही है तो प्लीज़ जो मैंने किया उसे फॉरगिव कर दीजिए। गेस व्हाट, आई स्लेप्ट आफ्टर दैट, आफ्टर रियलाइजिंग कि मेरे पास 1 घंटा है सोने के लिए। मैं तब भी सो गई और मैं 5 बजे उठी हूँ गाइस। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मेरी मम्मी आ गई थी, उन्होंने मुझे बहुत दिलासा दिलाया तो मैं बहुत सेंटी हो गई और मैं सो गई। मम्मी ने कहा पेपर अच्छा जाएगा बेटा, इतना स्ट्रेस, तूने इतनी मेहनत करी है, रिलैक्स कर, अब पूरा अब सिर्फ भगवान पे छोड़ दे, सब कुछ है। लाइक यस मम्मी, अब मैं सोने जा रही हूँ। और मैं सो गई और मैं लेजिट सो गई हूँ ऐसे घोड़े बेच के, ऐसी बुरी नींद में सोई हूँ कि मुझे अगर यमराज भी आकर बोले बेटा वेक अप एंड आई बी लाइक ओली। फिर जब मैं उठी 5:30 बजे, सॉरी मैंने 5 बजे बोला आपको, आई एम सॉरी, बट जब मैं 5:30 बजे उठी देन मैं ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा गिल्टी थी कि मैंने क्यों सोया एंड मुझे उठ के पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी। एंड देन जब मेरी मम्मी ने बोला ये चीज़ कि मैंने देखो सोती हुई देख लिया था, मेरे को गुस्सा चढ़ा। मैं सोच रही हूँ मम्मी आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? अगर आपको मैं सोती हुई दिख रही हूँ, आपको मेरा प्लान पता था, आपको मेरा प्लान पता था कि मेरे को कितने बजे उठना है, मेरे को कितने बजे सोना है, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? बट वो टाइम नहीं था कि मम्मी से बीफ ले लूँ, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले इज़ द मोस्ट क्रूशियल टाइम कि आप अपने पेरेंट्स से बना के रखो गाइस। तो मैंने ऑब्वियसली मम्मी कुछ नहीं कहा, बट मैंने अपने आप को बहुत कोसा एंड उसके बाद मैं पढ़ने बैठी। मैंने क्या किया उसके बाद आई विल टेल यू। मैंने रिवाइज़ किया, मैंने लेजिट रिवाइज़ किया है गाइस। मैंने इतना अच्छे से तो कभी बैठ के 3-4 घंटे रिवाइज़ नहीं किया। अगर मैंने किया होता तो मेरे मार्क्स जैसे आते हैं वो ऐसे नहीं आते। यस, मतलब पहले के पेपर्स में, टॉकिंग और पहले के पेपर, अगर मैंने जितना रिवाइज इस बार किया उतना मैं पहले करती तो आई वुड हैव स्कोर्ड ग्रेट नंबर्स गाइस। बट मैंने लेजिट ग्राइंड किया है बहुत टाइम तक, लिटरली 8:30 तक मैंने ग्राइंड किया है। आई नो मैंने बहुत मोटिवेशनल गुरुज और बहुत एग्ज़ाम से पहले वाले जो गुरुज बताते हैं कि बहुत टिप्स देते हैं कि आपको एग्ज़ाम से पहले कुछ नहीं पढ़ना है, ओके। तो मैंने वो चीज़ को ना लिटरली ले लिया। मैंने एग्ज़ाम से पहले कुछ नहीं पढ़ा, एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले सब पढ़ लिया है। हाँ, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब पढ़ाई करी, ठीक है। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर्स का वापस से फ़ोन आ गया था। वो लोग मेरा भेजा खोते हुए, पूरा उन्होंने विटनेस किया है मुझे, क्योंकि मैं एग्ज़ाम से पहले ना कुछ ज़्यादा ही कॉमेडियन बन जाती हूँ। मेरे दुख को मैं नॉर्मलाइज़ करने के लिए ही वो जोक्स मारती हूँ बहुत गंदे वाले। ये वाला जोक भी मारा है मैंने, अगर आप इफ़ यू नो यू नो।
तो तो या आई डिड दैट। एंड उसके बाद मैंने, मेरी उस टाइम पे थोड़ी फटनी शुरू हुई थी। मेरी एक्चुअली उस टाइम फट रही थी क्योंकि मुझे 10th का टाइम याद आ गया था। एक्चुअली मैं आपको चीज़ अगर बताना चाहूँ तो मेरा 10th का जो सेंटर था बोर्ड एग्ज़ाम का, वो इस बार भी सेंटर था, विच इज़ वाई मेरा उस सेंटर से ना थोड़ा इफ़ी सा रिलेशन है। क्योंकि वो सेंटर जो था ना भाई, मैं क्या बोलूँ आपको, वो सेंटर बहुत ही भूलभुलैया सा है। वो स्कूल, अगर आप जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ रहते हैं, आपको पता है मैं किस स्कूल की बात कर रही हूँ। वो स्कूल बहुत पॉपुलर है, वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा वो हैं कि हम तो, मेरे स्कूल जो है उससे बहुत अच्छे हैं। बट ब्रो मैं आपके स्कूल में गई हूँ और मुझे पता चल गया है आपके स्कूल की क्या हालत है। भूलभुलैया स्कूल है वो, मतलब लिटरली इतना डिसऑर्गनाइज स्कूल तो हमारा भी नहीं है। और हमारा स्कूल तो लिटरली क्या ही बोलूँ अब। बट या तो वो सेंटर के साथ बहुत मेरी अच्छी रिलेशन नहीं है, आई वुड लाइक टू से। बहुत ही, हाँ, वहाँ जाकर ना सांस तेज हो जाती है, अजीब सा लगता है। तो मेरे को वो चीज़ें रियलाइज़ होने लग गई। मैं पापा के साथ तो जा रही थी, पापा के साथ जब मैं 10th में गई थी बोर्ड देने के लिए, पापा का मूड उस टाइम शायद अच्छा नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि मतलब रहता नहीं था उस टाइम में भी, वो पार्ट ऑफ उनकी लाइक आई डोंट नो क्या था, बट उस टाइम वो बहुत गुस्सा रहते थे। पेपर, मेरे जब पेपर थे, बट मुझे लग रहा है कि अभी उनका फेज़ ही था उस टाइम पे। तो जब मेरे को पेपर दिलाने जाते थे तो गुस्सा वुस्सा कर देते थे। गुस्सा आई वुड नॉट से, बट वो थोड़ा सा उनकी अप्रोच है ना थोड़ी सी प्रैक्टिकल सी, वो बिल्कुल भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। मतलब हैं थोड़े से, अब हो गए हैं, पता नहीं शायद 2 साल में डिफरेंस आ गया मेरे पापा में, बट क्या बोलूँ। तो फिर हम क्या कहते हैं, मैंने तैयार हुआ और बहुत जल्दी जल्दी नहाया मैंने, ठीक है। एंड देन क्योंकि मैं लेट हो रही थी, लिटरली सबने कहा था 9:15 पे पहुंच जाएंगे सेंटर पे, क्योंकि सेंटर हमारा 10 बजे क्लोज होता है। तो मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी एंड पापा भी तैयार हुए। और मैं एग्ज़ाम्स पहले कुछ नहीं खाती, मेरी इतनी बुरी फटी रहती है, मैं क्या बोलूँ आपको। मैं लिटरली जितने पेपर दिए हूँ आज तक, मैं खाना खा के नहीं गई हूँ। आई नो बहुत ही टॉक्सिक चीज़ है, बहुत ही, यू शुड नेवर बी डूइंग दिस, बट द थिंग इज़ कि मेरे अंदर से वो भूख ही नहीं होती। क्योंकि मेरे जब स्ट्रेस है इतना सारा, मेरे पास इतना सारा स्ट्रेस है, मेरे को भूख नहीं लगती है, सही में नहीं लगती है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने मतलब, लेकिन मम्मी ने ना वो घी वाला पराठा होता है ना, वो बनाया था। इफ़ यू नो वो बहुत अच्छा होता है और लाइक तुम्हारा देख के ही मन बहल जाता है। तो और फिर पनीर की सब्ज़ी और थी, आई लव इट। तो मैंने वो एक पराठा खा के ट्राई किया, थैंक यू चिड़िया कि नहीं क्यों तो। बट मैंने वो खा के ट्राई किया एंड मैंने वो कंप्लीट करा, फिनिश करा। ऑल्दो मेरे को उसका लास्ट बाइट तक गॉबल करने में बहुत रोना आ रहा था। एंड उसके बाद मैंने दही चीनी खाई गाइस। बीइंग फ्रॉम अ देसी हाउस होल्ड, एग्ज़ाम देने से पहले आप कुछ दही चीनी खा के जाते हो। अगर आप नहीं खाते हो दैट्स समथिंग टू बी डिस्कस्ड, क्योंकि लिटरली सबकी माएँ ऐसी ही हैं, वो दही चीनी का सिस्टम करती हैं। उसके बाद मैं गई, मेरी मम्मी तो भाई कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक है। वो तो मेरे को बार बार दिला जा रही, कोई बात नहीं बेटा, पर पेपर अच्छा ही जाएगा। और मतलब मैं भी हूँ, मैं भी पूजा वूजा करा, टीका वीका लगाया। ऑब्वियसली मैं फ़ोटो लगा दूँगी यहाँ पे, अगर फ़ोटो दिखाने लायक होगी तो। मैंने एग्ज़ाम देने से पहले एक फ़ोटो खींची थी। ये मेरी फैमिली का ना एक तरीके से आई वुड से रिचुअल है। हम लाइक कोई भी, आई वुड नॉट से ये मैंने शुरू किया है शायद, पता नहीं, बट जब भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है ना, नहीं ये मैंने नहीं शुरू किया, हाँ मैंने नहीं किया, बट हम ना ग्रुप, मतलब फैमिली ग्रुप के अंदर ना फ़ोटो डालते हैं कि अब मैं ये करने जा रही हूँ, लाइक कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट है या फिर दीदी कुछ कंपटीशन में जा रही है या कुछ हो रहा है, तो हम ना फ़ोटो खींच के देते हैं कि हाँ हम गोइंग, ये है वो है। जैसे मैं आफ्टर पार्टी में भी गई थी ना, मैंने कार के अंदर भी फ़ोटो खींची थी कि देखो आई एम गोइंग नाउ दोस्तों के साथ, एंड फ़ोटो वगैरह खींच के भेज देती हूँ। आई डोंट नो ये सिर्फ मेरी फैमिली का सिस्टम है या सबकी फैमिली का सिस्टम है, आई डोंट थिंक सबकी फैमिली का सिस्टम है, क्योंकि मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ और वो कहते हैं कि ये नॉर्मल तो नहीं है। बट मैंने बोला मुझे अच्छा लगता है, आई डोंट केयर। एंड देन मैं उसके बाद निकल गई ऑब्वियसली। और पूरे रास्ते मेरे पापा स्कूटी चला रहे हैं एंड देन वो कुछ तो बोल रहे हैं, एंड देन वो कह रहे हैं कि स्कूल का जाके गेट छूना होता है और भगवान जी का नाम लेना होता है। उनका लॉजिस्टिक ये थी ये चीज़ बोलने की, अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हें लाइक तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेंगे, बट अगर तुम उनके पैर वैर नहीं छुओगे, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो तुम्हें वो सपोर्ट भी नहीं करेंगे। एक तरीके से मैं अग्री भी करती हूँ उनकी लॉजिस्टिक से कि हाँ भाई बात तो सही बोल रहे हो आप। बट फिर ना वो बहुत सारा बोल रहे थे तो मुझे उतना सुनाई नहीं दिया, लाइक मतलब दे रहा था बट वो हवा आती है ना, 70% 80% सुनाई दिया मैंने, हाँ हाँ किया तो। बट ये मे बी नॉर्मल सी चीज़ है। फिर हम सेंटर पहुँचे, मेरी तो सांसें तेज हो गई। तभी मैं गेट पे पहुँची और मेरे पापा दिख गए मुझे। मेरे पापा बहुत लाइक अच्छे हैं, मैं क्या बोलूँ। तो एक तो मैं उधर जाके सेंटी हो जाती हूँ, पता नहीं क्या है कि पेपर देने जाना पड़ेगा, पापा से मुझे दूर होना पड़ेगा, बाय पापा। अजीब सी फीलिंग आती है, ऐसे लगता है मैं पता नहीं कहाँ ट्रेन में जा रही हूँ, घर से दूर जा रही हूँ, बहुत अजीब, ऐसे लगता है कुछ कुश्ती लड़ने जा रही हूँ, अजीब सी फीलिंग आती है। उधर मेरे को मेरे फिजिक्स वाले सर दिख गए, पापा कह रहे हैं बात करो सर से, गुड मॉर्निंग सर, ऐसे कर दिया मैंने। और सर ने बोला हाँ बेटा, सर मेरे को जानते हैं, सर मेरे को पसंद नहीं करते हैं, बट वो म्यूचुअल नहीं है सर,
क्योंकि मैं तो आपको कुछ खास पसंद करती नहीं हूँ, बट स्टिल आप टीचर हो तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो पापा ने बोला बात करो जाओ से, बात करा हे करके आ गई मैं। ऐसे करके मैं निकल ली। फिर हम लोगों को लिटरली 20 मिनट लगे हैं मेरा रोल नंबर देखने में, क्योंकि सेंटर में दिस रोल नंबर टू दिस रोल नंबर होता है। अब मैं अनपढ़ गवार नहीं हूँ गाइस, मैं अनपढ़ गवार नहीं हूँ गाइस, मैं अनपढ़ गवार नहीं हूँ गाइस, नहीं हूँ। तो मतलब द थिंग इज़ कि उन्होंने बहुत कन्फ्यूजिंग तरीके से लिखा हुआ था। मतलब मैं तो गधी हुई, बट मेरे पापा को भी काफ़ी टाइम लगा वो चेक करने में, विच मीन्स कि जेन्युइनली बहुत ही खतरनाक तरीके से लिखा हुआ था रोल नंबर, और फ़ोन भी छोटा था। तो हम कलेक्टिवली पापा और मैं बहुत अंधे हैं, तो हमें देखने में टाइम लगा। और यू नो जब शुरुआती ऐसी खतरनाक सी होती है, जब तुम्हें लिटरली पता ही नहीं है, पापा भी डर गए एक बार मेरे पापा के कि रोल नंबर नहीं है क्या तेरा यहाँ पे। तो फिर कलेक्टिवली हम दोनों की फटने लग गई। एंड देन फिर हमें जब रोल नंबर मिल गया, आई वाज लाइक अब जाना पड़ेगा पापा। देन रोल नंबर मिल गया, पापा ने बोला हाँ हाँ। फिर पापा ने मेरे को एक हगी पाई। देन फिर मेरे को तो और ही सेंटी हो जाती मुझे तो, जब पापा फिजिकली वो हो जाते हैं, पापा जैसे हो जाते तो मैं तो सेंटी हो गई। मेरे को बुरा लगता है ना कि मतलब अब मुझे पेपर देने जाना पड़ेगा, और मेरे को लोग इतना विश कर रहे हैं, तो मुझे अंदर से वो हो जाता है ना गिल्ट वाली फीलिंग कि मैंने क्या इतना प्रिपेयर किया भी है, जितना लोग मेरे को लेके ऑप्टिमिस्टिक, क्या मैं खुद को लेके उतनी ऑप्टिमिस्टिक हूँ? दैट्स क्वेश्चनेबल। गई अंदर, फिर उसके बाद मैंने मेरा बैग रखा इस साइड, एंड देन उधर मेरी चेकिंग हुई है ऑब्वियसली। एंड देन मैं इतनी अच्छी इंसान हूँ, मेरे पापा की बात मैं मानती हूँ। मैंने उन आंटी को भी था, मतलब आंटी नहीं थी वो मैडम थी, उन्होंने मेरा चेक किया, उनको थैंक यू मैम करके मैं आगे बढ़ी हूँ, क्योंकि आई एम कूल लाइक दैट। सो अब अंदर गई। अब जिस स्कूल की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप समझ गए हैं मैं इसकी स्कूल की बात कर रही हूँ, आई वुड नॉट लाइक टू नेम देम, बट बहुत गंदा स्कूल है। मुझे 15 मिनट लगे मेरी क्लास को डिसाइड करने में कि मेरी क्लास कौन सी है। 9th D थी वो क्लास जहाँ मेरा आया था। मैं बहुत फटी हुई थी, मैं नए स्कूल जा रही हूँ, मुझे इतना गंदा लग रहा था। बट गेस वॉट, मैंने जैसे गेट खोला, मेरा एडमिट कार्ड उन्होंने चेक किया, एंड देन गेस वॉट, पूरी क्लास में मेरी क्लास के बच्चे थे, पूरे नहीं थे बट 30th रोल नंबर तक। और मेरा रोल नंबर 10 है गाइस, 10 नहीं है 9 है मेरी क्लास में, बट उस क्लास में तो अलग ही थे ऑब्वियसली। बट मुझे मेरी क्लास के बच्चों को देख के ना इतना अच्छा कभी नहीं लगा, कभी नहीं। मेरे फ्रेंड्स में से, मतलब मेरे 4 लोग का ग्रुप है, उसमें से मतलब मैं इंक्लूडेड, तो 3 लोग फ्रेंड्स हैं, उसमें से 2 मेरे फ्रेंड्स हैं। एक का रोल नंबर मेरे जस्ट पीछे आता है और एक का मतलब सामने ही है। तो मतलब मेरे 2 फ्रेंड्स उधर थे, मतलब मेरी एक और फ्रेंड है वो मुझे मिली नहीं उधर, मुझे बहुत बुरा लगा उससे। मेरी ना सेंटर से पहले बात हुई ना सेंटर के बाद बात हुई, तो मुझे बुरा लगा। बट या सो हम बैठे और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ज़्यादा। बट मेरे दोस्तों को देख के फिर मुझे थोड़ा ठीक लगने लग गया। एंड देन फिर हमने बहुत मज़े भी किए, हमारे पास हमारे इन्विजिलेटर 2 मेल टीचर्स थे। मतलब ये डिफरेंट एक्सपीरियंस था फ्रॉम बीइंग इन क्लास 10th और गिविंग बोर्ड एग्जाम्स एज अ 10th ग्रेडर। मैं हमेशा यही बोलती रहती हूँ मेरे सारे वीडियोज़ में, आई नो, सिट डाउन वीडियोज़ में, बट जेन्युइनली बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। आई विल टेल यू, मैं जब 10th में पेपर देने जाती थी ना, सब लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता होगा, बट 10th क्लास में जब मैं जाती थी ना, आई वुड टाई माई हेयर अप। मैं लिटरली टीका पूजा करके जाती थी। ऑब्वियसली मैंने टीका पूजा अभी भी किया था, वो तो नॉन नेगोशिएबल है, मैं तो लगा के जाती हूँ और पूजा करके जाती हूँ। मेरी क्लास में मेरे फ्रेंड्स का रोल नंबर भी आता था ना, मैं किसी से बात नहीं करती थी। मैं लिटरली उस चीज़ में बहुत ज़्यादा, मैं वीडियोज़ वगैरह देख के आती थी ना, कि मेरे को पता नहीं था एक्चुअली में क्या होता है, तो मैं वीडियोज़ में देखती थी। उन लोग बोलते थे कि प्लीज़ नहीं, आप किसी से बात नहीं करोगे, फ्रेंड से कोई डिस्कशन नहीं करना है आपको। तो उसने हाँ नहीं करूँगी, मैं नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो लोग मुझसे कुछ पूछ लेंगे या मुझे नहीं आया तो। बट आई वाज लाइक आई डोंट केयर भाई, छोड़ो भाई, क्या करना है, तुम इतना क्या ही कर लोगे। तो फिर अब मुझे वो लेवल ऑफ मेच्योरिटी में रीच कर गई हूँ होपफुली, जिससे मतलब मुझे ये चीज़ पता लग जाती है कि इट डज़ नॉट मैटर। तुम्हें एक लेवल ऑफ कंफर्ट रीच करने के लिए यू हैव टू टॉक विद योर फ्रेंड्स, दैट्स लिटरली ओके। मैंने ऑब्वियसली फ्रेंड्स के साथ चिल किया, मज़े किए, हमने चीज़ें डिस्कस करी। टर्न्स आउट सबको ही दिक्कत हुई थी रोल नंबर देखने में, नॉट ओनली मी एंड माई डैड। मैं बता रही हूँ आपको, जो स्कूल में मैं गई थी ना, वो टोकन ऑफ हेट स्कूल है। वो लिटरली फ्लैग बेयरर ऑफ लिटरली, मतलब हेट। स्कूल में इतना हेट है, मैं सही बता रही हूँ। टीचर्स भी इतना हेट करते हैं ना हमारे स्कूल को। वो स्कूल थोड़ा कंपटीशन में रहता है हमारे स्कूल के साथ। अगर आपको थोड़ी सी हमारे स्कूल की पॉलिटिक्स जाननी है तो आई डोंट केयर, बट मैं अभी नहीं बताना चाहूँगी, लोग बोर हो जाते हैं। मैं खुद भी बोर हो जाऊँगी अगर मैं ये वीडियो देखूँगी तो। बट तो मतलब थोड़ा स्कूल के बीच में थोड़ा अनबैलेंस सिचुएशन सी है। तो क्या हुआ, किसी बच्चे ने पूछा सर से, जो इन्विजिलेटर 2 सर थे, उनसे पूछा कि सर क्या ये कैमरा काम करता है, लेकिन ऐसी चिल वे में पूछा ऑब्वियसली, कि मतलब ऐसी मजाक में। ऑब्वियसली वो बोलेंगे ना कि काम करता है, बट उनका बोलने का तरीका ना क्या था, उन्होंने ये बोला कि हाँ ऑब्वियसली तुम्हारे स्कूल डैश की तरह थोड़ी है कि जो कैमरास काम नहीं करते, और हमारे देखने वाले टीचर्स भी हैं, कैमरा भी चेक करेंगे वो लोग, तुम्हारे स्कूल की तरह थोड़ी है, ऐसे बोला उन्होंने। एंड उन्होंने जैसे करीबी स्माइल की, मतलब मैं भी स्माइल कर नहीं पा रही, बट उस बंदे ने सिर्फ स्माइल करके हम लोगों को बोला। एंड वी वर लाइक इस इंग्लिश सब क्लास शांत हो गई, और उनको ऐसी बहुत ही साइड आई दी। देन वो
उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बोला वो अडल्ट है ना, हे हर चीज़ में हे करने के आया था ना, इडियट जैसे उन्होंने हंस दिया। एंड देन आई होप ही पेज फॉर व्हाट ही सेड। बहुत ही गंदा उनका वो है। आई हेटेड दैट इन्विजिलेटर। मैंने 10th क्लास में सारे फीमेल इन्विजिलेटर्स देखे थे, बेस्ट भाई बेस्ट, ना ज़्यादा बकवास ना ज़्यादा कुछ। उस बंदे ने बहुत पंचायती करी है, और वो बहुत ही मॉकिंग सी स्मार्ट टाइप स्माइल देता रहा था पूरे पेपर में कि हो गई तुम्हारी फील्डिंग सेट, पेपर देख के होगा तुम्हारा ये एंड ऑल। मतलब उनकी स्माइल में पता चल रहा था कि वो आदमी क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, इडियट। एनीवेज, तो पेपर मिला, पेपर मैंने किया और मैं ना काफ़ी टाइम हो गया था 10th का वो बोर्ड लिखे हुए, तो मैं थोड़ा फंबल कर गई थी, मैंने रोल नंबर थोड़ा सा गलत लिख दिया था। बट आई डोंट केयर, मेरे को अगर मैं 10th में होती ना और मैंने बोर्ड नंबर ढंग से लिखा नहीं होता तो मेरी मेरी तो फट के चार हो जाती। आई एम फूल लाइक दैट, सो मैंने उसको डार्क करके सही कर लिया और नो वन केयर्स। मुझे पता है रियलिटी, टीचर ऐसे डराते हैं, सब कुछ चिल होता है। और मैंने नीचे जो बबल्स हैं उसके अंदर से अच्छे से फील किया था। तो अगर सीबीएस वाले जनरली इडियट्स ही हैं तभी वो लोग मेरा रोल नंबर गलत भरेंगे, क्योंकि मैंने इतना डार्क करके सही किया था। एंड देन उसके बाद पेपर मिल गया मेरे हाथ में। एंड देन पेपर मिला ना, और मैंने मेरे फ्रेंड्स ने एक साथ लाइक एक दूसरे को देखा है। एंड देन उस 1 सेकेंड के ग्लैंस में ना सारी बातें हो गई जो हमको करनी है पेपर को लेके, कि हमारी तो फील्डिंग सेट है भाई सेट है, सही में सेट है। मेरे हाथ में ये वाला पेपर, ओ शिट, मेरा रोल नंबर दिख रहा है क्या इसके अंदर से? हाँ, मेरे हाथ में ये वाला पेपर आया। एंड देन पहली बात तो मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मुझे क्या मिल गया है। ये बोर्ड का पेपर है, फिजिक्स का क्वेश्चन मार्क। मैं जैसे जैसे एमसीक्यू करने की कोशिश कर रही थी, मेरा तो बुरा हाल हो रहा था। मैं एमसीक्यू खोली, मुझे एक एमसीक्यू नहीं आया। ऑब्वियसली सारे सॉल्विंग के क्वेश्चन थे, और जो थ्योरी के थे वो इतने खतरनाक थे कि मुझे एक भी समझ नहीं आया। मतलब ये होता ना कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन ईजी होगा, थ्योरी का नहीं होगा। एमसीक्यू के अंदर हमेशा यही करते हैं ये लोग। मैंने वो खोल लिया, केस स्टडी खोल लिया। देन केस स्टडी करने की कोशिश करी, सॉल्व करा। मुझे श्योर नहीं है, मेरे पेपर के बारे में बात करने का उतना मन नहीं है। मेरा पेपर एक्चुअली अच्छा नहीं गया है, मेरा सेट 2 आया था जैसा आप लोगों ने देखा। मैं बस करके आई हूँ पेपर, मैंने बस किया है। बहुत सारी चीज़ें मैंने की है, ऑब्वियसली मेरे को कुछ चीज़ें आ रही थी, ऑब्वियसली मैंने किया है। बट अगर मैं ज़्यादा सोचना ही चाह रही पेपर के बारे में, क्योंकि मुझे पता है कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगी। मैं वो टाइप की बच्ची हूँ जो मतलब पेपर चेक नहीं करती है आने के बाद। मेरे पापा बहुत वो टाइप के, अलग टाइप के, उन्होंने कहा है कि पेपर चेक करके बताना कैसा आ रहा है। मैं नहीं करना चाहती, मुझे डिमोटिवेशन होती है नेक्स्ट पेपर के लिए, इसलिए मैं नहीं करूँगी ऑब्वियसली। मैं तो इसलिए पेपर के साथ लेकर आई आपको बताने के लिए, मेरा सेट ये था एंड ऑल, और जस्ट फॉर मेमोरी से कि मैं आगे जाके अगर देखूँ, और अगर मेरा फ्यूचर में ये वीडियो देख रहा है तो मैं वो जानना चाहती हूँ क्या ये फिज़िक्स का पेपर मेरी लाइफ डिफाइनिंग पेपर था, क्योंकि मैंने इसको इस तरीके से ट्रीट किया। पूरे 12th स्टैंडर्ड मैंने ये सोच के पेपर दिया, ये सोच के पेपर खोला, पढ़ाई करी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होगा ऑफ माई लाइफ। एंड जिस चीज़ के लिए तुम इतनी मेहनत करते हो ना, वो अच्छी नहीं जाती ना, तो बहुत ज़्यादा सैड लगता है, बुरा लगता है। वो मुझे लग रहा था ऑब्वियसली, बट अब मैं उतना सोच नहीं, मैं ना अपना माइंड शट ऑफ कर देती हूँ जब मुझे कोई चीज़ ज़्यादा इफेक्ट करने लग जाती है। आई नो बहुत ही टॉक्सिक ट्रेट है, बट कभी कभी आई नो दैट यू हैव टू कभी कभी लेट योर सेल्फ फील थिंग्स, बट मेरे को भी उतना फील नहीं करना, तो इसलिए मैं ज़्यादा सोच नहीं रही इसके बारे में। अभी मैं बस आगे के पेपर्स का ध्यान देना चाहती हूँ। नेक्स्ट पेपर केमिस्ट्री का है 28 को, मुझे डेट थोड़ी मिक्सअप हो रही है क्योंकि बायो का पेपर 27 से 28 को है, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती है। और जब मैं पेपर देकर आई ना, मेरे सब दोस्तों की बुरी वाली फील्डिंग सेट थी ऑब्वियसली। सब लोग ऐसे कहते पेपर अच्छा नहीं गया, क्या पेपर था। कुछ लोग कह रहे एमसीक्यू अच्छे नहीं गए, कुछ लोग कहते हैं अच्छा नहीं गया, वो अच्छा नहीं गया। बट आई वाज लाइक जस्ट हमें एक सब शट ऑफ कर जाते हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ नहीं सोचते हैं, एंड देन बस हम अगले पेपर की तैयारी करते हैं। आई थिंक दैट वुड बी बेटर। आई नो मुझे नहीं पता, कोई मुझे बता दो क्या ये चीज़ अच्छी है करना, क्या ये चीज़ गलत है करना, क्या हमें ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बट मेरा यही सोचना है और कहना है कि हमें बस थोड़ा सा शट ऑफ करना चाहिए एग्ज़ाम्स के बाद, एग्ज़ाम्स लाइक फिज़िक्स, कि हम आगे मूव ऑन कर सकें। ओके, देन जब मैं घर आई ना, आई थिंक आई हैव गॉट ग्रेट पेरेंट्स गाइस, आई वुड लाइक टू से दैट। कभी कभी मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा वो करती हूँ कि मतलब मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं, बट यू नो सब इंसान बहुत ही ग्रे होते हैं, और मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स थोड़े से अच्छे हैं। मतलब मैं पेपर देकर आई ना, मुझे ये लग रहा था जब मैंने पेपर हैंड ओवर किया है ना, मुझे लाइक मेरे पापा क्या कहेंगे जब मैं उनको बोलूँगी पेपर अच्छा नहीं गया। बट ही वॉज लाइक, वो उस साइड ऑफ द रोड थे, स्कूल इस साइड ऑफ द रोड था, एंड देन मैं वो रोड क्रॉस करी थी, एंड देन ही गेव मी अ हग, एंड आई वाज लाइक पेपर तो ठीक नहीं गया ना। देन ही वाज लाइक पेपर ख़त्म हो गया ना, बस फिजिक्स का पेपर था ना, सबसे बड़ा हर्डल था वो ख़त्म हो गया है ना, बस अभी कुछ भी नहीं सोचना है।
नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है, चिल ऑफ करना है। पेपर सबसे बड़ा हर्डल जो फिजिक्स था वो ख़त्म हो गया, वही सबसे बड़ी चीज़ थी, वो ख़त्म हो गया, दैट्स इट, बी हैप्पी। एंड देन वो मेरे फ्रेंड्स के उससे मिले, पापा से मिले, एंड मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें बताई और वो इतना पेशेंटली सुन रहे थे। आई नो बहुत ही बेसिक चीज़ आप लोग को लग रही होगी, बट बीइंग अ डॉटर ऑफ माई डैड ये चीज़ उतनी नॉर्मल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मतलब आई नो मेरे पापा उतने लिसनर नहीं है, क्वेश्चन मार्क, बट वो मेरी पूरी बात इतने इंटेंट से सुन रहे थे ना। मतलब बीइंग द यंगेस्ट डॉटर मुझे थोड़ा सा वो होता है ना कि मतलब मैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग बोलूँगी तभी कोई इंसान मेरी बात सुनेगा, या मतलब मैं कुछ बहुत ही फ़नी बोलूँगी, इंटरेस्टिंग बोलूँगी तभी लोग मेरी बात सुनेंगे, और तभी आई वुड कम अक्रॉस एज अ पर्सन जो लिसनेबल है, जिसकी बात सुनने लायक है। तो मतलब तब भी मेरे पापा ने, इवन दो मेरी बातें उतनी फ़नी नहीं होंगी, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होंगी, कंसिडरिंग कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है, ही वुड नॉट वांट टू लिसन टू मी, बट स्टिल ही लिसन। मेरा एग्ज़ाम पेपर कैसा गया, चीज़ें कैसी थी, वो क्वेश्चन कर रहे थे, क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे। मेरे दोस्त के पापा से मिले तो उनके बारे में बता रहे थे कि उन्होंने क्या बात करी, एंड आई फेल्ट कि भाई दैट समथिंग आई हैव वॉन, इवन दो मैंने एक बैटल हार ली है अपेरेंटली, बट दूसरी बैटल मैं जीत गई हूँ। दैट इज़ के आई डिडंट लेट द फिजिक्स पेपर टेक ओवर मी, आई एम स्टिल मी, एंड आई एम स्टिल ओके। And 100 of people would not like the way that I'm reacting after giving my exam, I know that, but I know the way that I am, and मैंने बहुत मेहनत करी थी। I know उस तरीके से पेपर नहीं जाता है, but it's okay because काफ़ी सारी चीज़ें जैसे नहीं जाती जैसे तुम एक्सपेक्ट करते हो ऑब्वियसली। तो मे बी उस चीज़ से हैंडल करना हमें ये चीज़ सिखाना चाहती थी। आई थिंक फिजिक्स का पेपर मुझे ये सिखाना चाहता था कि it's okay if things don't go your way, and you still have to be you even after things break you, even after things like make you feel bad. You still have to overcome that feeling, and you still have to stand up strong and do your best for the next paper, because it's still okay and it's normal, and you still have to show up. So it's better that you be okay with it, and I think I am okay with it. Yes, so that's it. I think that's going to be all what I'm going to be talking about. I really hope I make another video talking about what I'm going to be doing for chemistry. So I have a lot of time on my hands. आज 21 है, तो आज से फिजिक्स की लेक्चर्स भी, आई मीन केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी स्टार्ट होने वाले हैं आशु सर के। ऑब्वियसली आई ट्रस्ट दैट मैन विद माई लाइफ, एज यू गाइज नो मी। अगर वो वीडियो जो मैंने बनाए हैं इससे पहले वो लाइव जा भी पाएंगे, अस्तित्व में आ भी पाएंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितना मैं आशु सर को ट्रस्ट करती हूँ। आई ट्रस्ट हिम विद माई लाइफ, विद एवरीथिंग, बिकॉज अगर वो कुछ कहेंगे ना वो मेरे लिए पत्थर की लकीर है, इतना उस इंसान को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। तो जो भी वो कहेंगे मैं इस बार अच्छे से फॉलो करूँगी। मैंने थोड़ा सा लूज ऑन अप कर लिया था फिजिक्स के टाइम, इतना मैंने कभी भी कोई चीज़ रिग्रेट नहीं करी जितना वो किया था। तो मैं इस बार जो भी वो कहेंगे हर चीज़ को 100% फॉलो करूँगी, एंड आई विल बी डूइंग दैट। Until then, I will see you guys another time. Until then, bye bye. और क्या, मैं बहुत एक्साइटेड। मैंने पापोन अटेंड करा था पिलानी में। पापोन वाज नॉट गुड। पापोन इज अ गुड सिंगर, अच्छे गाने थे, गाने आधे मेरे को पता नहीं थे, वो अच्छा। That's a you problem. हेलो, पापोन ने